My dear student, today we are going to read your chapter Ruling the Countryside. In this chapter, we have discussed about the various important points we have read in this chapter about the company, that how he can become the diwan, and then after the changes, which type of changes introduced by the British East India Company in northern part of India. My dear students, we also discuss here that the Battle of Buxar, and after that the Treaty of Allahabad first and Allahabad second. In my previous video, I have explained about the Battle of Buxar and what was the result of Battle of Buxar. So you have to go there and learn what was the result of the Battle of Plassey and Battle of Buxar. Battle of Buxar, 22nd October 1764, and after that there were two treaties imposed by British India Company. First, 12 August 1765, East India Company and Mughal Emperor, and second, East India Company and Nawab of Awadh, and that result the whole northern part of India captured by East India Company, and they unwillingly control the Diwani of the Bengal, Bihar, Odisha by the Mughal Emperor. We have discussed in my previous video. We have also read about that starting of this chapter. The date is that on 12 August 1765, the Mughal Emperor appointed the East India Company as the Diwan of Bengal. This is the point where this chapter starts, and we have a vast discussion about that what happened. Britishers felt that in 1765 that we have to control the whole Diwani in our hand. We have to introduce the new land settlements. We have to fix our revenue, that we cannot ask for some wealth from our country like gold, like silver. हमें अपने देश से कुछ मंगाना ना पड़े, इस चीज़ का उन्होंने ख्याल रखा और उन्हें अपने व्यापार के लिए सारे खर्चे भारत के ट्रेड से निकालना शुरू किए. ये जो बातें थी, ये जो व्यवस्था थी, इस व्यवस्था से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने देश में, भारत में अपने पैर मजबूती से जमा लिए. उन्होंने लैंड रेवेन्यू सिस्टम पे बात की. लैंड रेवेन्यू सिस्टम को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, मजबूत किया जाए, इसके लिए उन्होंने भारत में 3 तरीके की व्यवस्था की. द रेवेन्यू फॉर द कंपनी, वी हैव डिस्कस द रेवेन्यू फॉर द कंपनी इन दिस टॉपिक, दैट देयर वर 3 टाइप्स ऑफ रेवेन्यू सिस्टम. लैंड सेटलमेंट सिस्टम was imposed by British administration on India. We have discussed about the permanent settlements, in other words permanent settlement called Jamindari settlements, and we have also read about the improvement of agriculture. It means the new settlement established, that is the Mahalwari settlements. Both settlements, there were some differences. If I recall about that Jamindari settlements, it was started in 1793 by Lord Cornwallis. When he became the Governor General of India, he felt that new system was settled on India. एक नई व्यवस्था भारत पे लगाई जाए, और वो व्यवस्था थी जमींदारी व्यवस्था. इस जमींदारी व्यवस्था के लिए उसने कई सारे सुधार किए, बदलाव किए, और वो व्यवस्था थी, अगर आप देखेंगे तो इस व्यवस्था में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से गवर्नमेंट को अपने रेवेन्यू को फिक्स करना था. उन्होंने 1719 में इसको 10 वर्ष के लिए इम्पोज किया, और 22 मार्च 1793 को इसे परमानेंट कर दिया गया. इसमें लैंड ओनरशिप जमींदार के हाथ में दे दी गई, और जमींदार को
फिक्स डिपॉजिट में रेवेन्यू एनुअली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पे करना पड़ता था। रेट रखी गई 10/11 एंड 1/11। 10/11 ब्रिटिश इंडिया कंपनी को देना पड़ता था, 1/11 इसके एवज में जमींदार अपने पास रखता था। लेकिन इसमें एक्सप्लॉयटेशन बढ़ गई थी किसानों की। ये व्यवस्था पूरे भारत के करीब 19% भाग पे लागू थी। ये व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी और गाजीपुर क्षेत्र तथा नॉर्थ कर्नाटका के क्षेत्रों पर लागू किया गया था। कुल 90% एरिया इसके अंतर्गत आता था। दूसरी व्यवस्था पे बात की थी हमने, सेकेंड सेटलमेंट से बात की थी, और वो सेटलमेंट्स थे महालवारी सेटलमेंट्स। महालवारी सेटलमेंट्स की शुरुआत हाल्ट मैकेंजी, जो इसका फाउंडर माना जाता है, हाल्ट मैकेंजी ने इस व्यवस्था को समझा। हाल्ट मैकेंजी ने एक नई व्यवस्था इम्प्लीमेंट करने की बात सोची और उसने अब लैंड पे अधिकार जमींदार की जगह किसानों को दे दी, ओनरशिप। अब ज़मीन पे अधिकार किसानों को दे दी, क्योंकि जमींदारी सिस्टम में ऐसा अंग्रेज़ों का मानना था कि अगर ज़मीन पे मालिकाना हक अंग्रेज़ों का होगा, जमींदारों का होगा, तो जमींदार न केवल रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे बल्कि ज़मीन को उपजाऊ बनाकर उसके उत्पादन क्षमता को बढ़ाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसलिए किसानों को ओनरशिप मालवारी व्यवस्था में दे दी गई और जमींदार को रेवेन्यू कलेक्शन से पूरी तरीके से हटा दिया गया। अब रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट्स महाल को दे दिया गया। महाल इट मीन्स विलेज, इट मीन्स पर्टिकुलर एरिया या ग्रुप ऑफ द विलेज। ग्राम के मुखिया को रेवेन्यू कलेक्ट करना था और कलेक्ट करके ब्रिटिश ट्रेजरी में जमा करनी थी। ये व्यवस्था 1819 में शुरुआत हुई और 1822 तक आते आते इस व्यवस्था में प्रॉपर डेवलपमेंट हुआ। 1833 में मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन ने इस व्यवस्था को सबसे अच्छे तरीके में लाके खड़ा कर दिया। 1837 तक आते आते जो रेवेन्यू रेट रखी गई थी इसमें वो 2/3 थी। 2/3 किसान अपने खर्चे को निकाल के 2/3 रेवेन्यू के रूप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जमा करता था, महाल वारी को मुखिया के माध्यम से। और ये 2/3 में भी चेंज लाया गया 1855 में, और अब ये 1/2 कर दिया गया, आधी 50%। तो निश्चित रूप से इसमें किसानों के फ़ायदे की बात की गई थी। और पहली बार इस व्यवस्था में, जैसा कि आपने पढ़ा था, हमने आपको बताया था कि इस व्यवस्था में पहली बार जो प्रॉब्लम जमींदारी सिस्टम में थी उसको दूर करने का प्रयास किया गया था। और यहाँ पे जो व्यवस्था बदली थी उस व्यवस्था में मैपिंग की गई, मानचित्र बनाए गए, किसान बही, जोत बही, खेत की पूरी मेजरमेंट कराया गया और मेजरमेंट के आधार पर रेवेन्यू फिक्स किया गया। ये व्यवस्था लोकप्रिय हुई। ये टोटल जो ब्रिटिश एम्पायर थी उसके 30% एरिया पे ये इम्प्लीमेंट की गई थी। ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब और ब्रिटिश के कुल करीब 30% भाग पे इसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया था। यहाँ तक की व्यवस्था हमने पढ़ी थी। मुनरो सिस्टम, हमने न्यू सिस्टम इज डिवाइड, इसमें हमने वही हाल्ट मैकेंजी महालवारी सिस्टम। आप यहाँ देखिए एक वर्ड डिटेल किया गया, महाल। यहाँ पे महाल एक वर्ड है। महाल का मीनिंग क्या, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ महाल? तो महाल की मीनिंग मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। महाल इन द ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड, महाल इज़ अ रेवेन्यू स्टेट विच मे बी विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजर्स। इट मीन्स एक ग्रुप्स था जहाँ से करते थे। और ये व्यवस्था टॉमस मुनरो के द्वारा स्टार्ट की गई। नो डाउट इट वॉज टेकन फेमस, बट एक्चुअल प्रॉब्लम बनी रही इस व्यवस्था में भी। किसान मनी लेंडर्स के शिकंजे से बाहर निकल सके। और अब फिर एक व्यवस्था शुरू करनी थी, एक नई व्यवस्था शुरू करनी थी जिसमें सुधार दिखाई दे, और ये व्यवस्था थी रैयतवारी व्यवस्था। मुनरो सिस्टम, टॉमस मुनरो। हमने हाल्ट मैकेंजी के द्वारा महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत देखी। हमने लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जमींदारी या परमानेंट सेटलमेंट्स देखा, जिसे कॉन्ट्रैक्ट लैंड सेटलमेंट्स भी कहते हैं। और अब तीसरी व्यवस्था जो थी वो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, जिसको मुनरो सिस्टम कहा गया।
मुंडो सिस्टम की कुछ अपनी विशेषताएं थी। मुंडो सिस्टम में किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से समझौते किए गए। रैयत इट मीन्स, हियर द वर्ड रैयत, रैयत इट मीन्स किसान, रैयत इट मीन्स पीजेंट्स, रैयत इट मीन्स द पर्सन्स हु इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन एग्रीकल्चर, खेती में जो अपने को इन्वॉल्व करता है रैयत कहते हैं। और इसीलिए रैयत से ये व्यवस्था रैयतवाड़ी कही गई, जिस व्यवस्था में टोटल ब्रिटिश एम्पायर का 51% पार्ट इन्वॉल्व हुआ। 51% एक बड़ा हिस्सा ब्रिटिश एम्पायर का रैयतवाड़ी सेटलमेंट्स के अंतर्गत आता था। ब्रिटिश भारत की मद्रास, बम्बई, ईस्ट बंगाल, आसाम एंड कुर्ग के क्षेत्रों में यह व्यवस्था लागू की गई थी। कर्नल रीड और मुनरो के समय ये व्यवस्था अपने सबसे अच्छे रूप में आई। 1792 ईस्वी में मद्रास में नए जीते गए इलाकों में इस व्यवस्था को सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया गया था टॉमस मुनरो के द्वारा। 1792 रैयतवाड़ी व्यवस्था 12 महल जिले से स्टार्ट की गई थी। कर्नल रीड ने ये लागू की थी, जो मुनरो का समर्थक था, और इसलिए इसके लाभ दिखने लगे। 1825 में व्यवस्था मद्रास में भी लागू कर दी गई। 1792 12 महल में लागू की गई, और फिर इसको मद्रास से इसको बम्बई में लागू किया गया। इट मीन पहले बम्बई, मद्रास में और फिर बम्बे में इस व्यवस्था के इम्प्लीमेंटर्स किए गए। 1858 तक आते आते व्यवस्था पूरे दक्कन में इम्प्लीमेंट कर दी गई। इस व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी? अब पीजेंट्स और गवर्नमेंट के बीच कोई भी मीडिएटर नहीं रहेगा। जमींदार के रूप में कोई मीडिएटर नहीं था। पहला पॉइंट इसकी सबसे अच्छी बात है, इट्स मेरिट ऑफ द रैयतवाड़ी सेटलमेंट। सेकेंड सेटलमेंट्स थी भूमि का ओनरशिप, लैंड ओनरशिप किसानों को दे दिया गया। अब वो ज़मीन को बेच सकते थे, खरीद सकते थे और गिरवी भी रख सकते थे। लगान की अदायगी न होने पे भूमि को जब्त कर ली जाती थी और प्रत्येक 30 वर्ष बाद इसकी पुनर्समीक्षा की जाएगी। इसमें कितना परसेंट लिया जाएगा ये भी तय किया गया। उपज का 1/2 इट मीन 50% रेवेन्यू के रूप में उसको देना पड़ेगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था निश्चित रूप से जमींदारी व्यवस्था से काफ़ी अच्छी थी, लेकिन यहाँ भी किसानों को उपज खरीदने के लिए, उत्पाद खेतों में अनाज खरीदने के लिए, बीज खरीदने के लिए मनी लेंडर से पास जाना पड़ा, और धीरे धीरे ये व्यवस्था उनके लिए शोषणकारी हो गई। लेकिन यदि आप इन चीज़ों को इतनी आसानी से समझें, बुक को देखें अपने और बुक से इसको समझने का प्रयास करें, तो आपको कैसे ये बात समझ में आएगी। देखिए ध्यान से कैसे सुधार हो रही है, क्या बदलाव आ रहा है, और मुंडो ने कैसी व्यवस्था इम्प्लीमेंट की। कहता है कि द मुंडो सिस्टम इज कॉल्ड द रैयतवाड़ी सिस्टम। आई अगेन इन्फॉर्म यू, in the British territories in the south there was a similar move away from the ideas of the permanent settlements. The new system that was devised came to be known as the Rayatwar or Rayatwari. It was tried on a small scale by Captain Alexander Reed in some of the area that were taken over by company after the war with the Tipu Sultan. Subsequently developed by Thomas Munro, the system was gradually extended all over South India. It is what I explained you, that this system was first time started in the southern part of India in the Baramal district 1792 Baramal district, now that time in Madras. That's why I'm saying this system was first time started in Madras. That area was conquered by the British India Company to Tipu Sultan. They have a vast land in the southern part and they started their settlements. Alexander Reed started first time. Subsequently, the developed by Thomas Munro. This system was gradually extended all over South India.
Reed and Munro felt that in the south there were on the traditional jamidar. The settlements they argued that to be made directly with the cultivators, Rayyat. Cultivators, it means peasants, it means Rayyat, who had tilled the land for generation, one generation to next generation to other generation, next to next generation. They tilled their field. It was felt by Thomas Munro. The settlements, they argued, had to be made directly with the cultivators, Rayyat, who had tilled the land for generation. Their field had to be carefully and separately surveyed before the revenue assessment was made. Munro thought that the British should act as the paternal father figure protecting the Rayyat under their charge. Britishers felt that if we will consider the Rayyat as a son, as a actual owner of land, then we can get many more income for particular land. It was क्लियर था, उनकी निगाहें अधिकतर लाभ प्राप्त करने के लिए थी। अंग्रेज इस बात के लिए पहले से ही आकलन करके बैठे थे, सावधानीपूर्वक सोच रहे थे कि इनकी ज़मीन का सर्वेक्षण करा के किया जाना चाहिए। और मुनरो तो यहाँ तक मानता था कि अंग्रेज़ों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी जानी चाहिए। यदि किसानों के रूप में रक्षा करेंगे तो ये व्यवस्था अपने उत्तम तरीके में आएगी। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया गया था, और यही व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था की गई थी। मैंने आपसे कहा कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के 51% पार्ट पे इम्प्लीमेंट की गई थी, एक बड़े हिस्से पे इम्प्लीमेंट की गई थी जो काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैली थी। अलेक्जेंडर रीड, थॉमस मुनरो के समय इन दोनों ने काफ़ी काम किया। इसमें परंपरागत जमींदारों को हटा करके ज़मीन की ओनरशिप किसानों को दे दी, और किसानों के संरक्षण की बात की गई थी। ये इस लैंड सेटलमेंट की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। आई मीन टू से दैट फर्स्ट टाइम ब्रिटिशर्स थिंक दैट इफ वी विल प्रोटेक्ट द पीजेंट्स, देन नो डाउट देयर रिजल्ट विल बी वेरी प्रोडक्टिव फॉर अस। इनकम would be surplus and it helpful for the both British East India Company and peasants. So these settlements was better than zamindari settlements. Now here we are discussing about that the बेनिफिट्स ऑफ दिस सिस्टम। लेकिन क्या सारे सिस्टम अच्छे रहे? क्या सब कुछ अच्छा रहा? शायद नहीं। ऑल वॉज नॉट वेल, सब कुछ अच्छा नहीं था। विद इन ए फ्यू ईयर आफ्टर द न्यू सिस्टम वर imposed, it was clear that all was not well with them. Driven by the desire to increase the income from land, revenue officials fixed to high revenue demand. Peasants were unable to pay. Rayyat's fields, the countrysides and villages became deserted in many regions. Optimistic officials had imagined that the new system would transform the peasants into rich enterprising farmer, but this didn't happen. प्रॉब्लम जेन्युइन थी, प्रॉब्लम वॉज वेरी जेन्युइन। इस न्यू सेटलमेंट्स में अंग्रेज़ों ने सोचा कि ये नई व्यवस्था लागू होगी तो कुछ सालों में ही हम प्रॉफिटेबल कंडीशन में आ जाएंगे। लेकिन समस्या शुरुआत में ही दिखने लगी।
सेटलमेंट्स के लागू होने में ही दिखने लगी। कुछ साल के भीतर ही समस्या एक एक करके सामने आने लगी। ज़मीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया था। पहली प्रॉब्लम, इनकम जो सेट की गई थी, जो इम्पोज की गई थी, वो काफ़ी, उसकी रेट बड़ी हाई थी। दूसरा, बहुत सारे क्षेत्रों में जो विलेज थे, गांव थे, वो वीरान हो गए, डिजर्टेड हो गए। रैयत गांव से भाग गए क्योंकि वो इनकम पे नहीं कर पा रहे थे। बहुत सारे क्षेत्रों में किसानों ने खेती करनी भी चाहिए तो वो मनी लेंडर्स के चंगुल में फंस गए। इसके बाद भी ऑप्टिमिस्टिक ऑफिशियल्स, ब्रिटिश ऑफिशियल्स ये सोचते थे कि इस नई व्यवस्था ने किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, इट मीन्स प्रॉस्परस पीजन बना देगी, इंटरप्राइजिंग फार्मर बना देगी। बट दिस डिडंट हैपन, ऐसा हुआ नहीं। और इससे रिजल्ट, किसानों की स्थिति डे बाय डे खराब होती चली गई। वर्स्ट टू वर्स्ट, अति एकदम बेकार से बेकार स्थिति आप समझ सकते हैं होती चली गई। और इस समय एक जब अंग्रेज़ों की अपनी डिमांड भी बढ़ने लगी, अब अंग्रेज अपनी आवश्यकता की चीज़, अपने महत्वपूर्ण की फसलें इंडियन पीजेंट्स, इंडियन फार्मर, इंडियन कल्टिवेटर्स के ऊपर इम्पोज कर रहे थे, फोर्स कर रहे थे कि अब आप वही खेतों में लगाइए जो हमें चाहिए। दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम फॉर द फार्मर्स, दैट दे वर फोर्स्ड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दैट यू हैव टू टिल योर प्लाउ अकॉर्डिंग टू आवर ओन वे, you have to grow that seed which we want. That is the main problem for the Indian peasants. And after all, after the last phases of the crops, फसल के पकने की अवस्था में ब्रिटिशर्स ने एक और इम्प्लीमेंटेशन कर दिया कि रेट हमारे ही द्वारा फिक्स की जाएगी। यू हैव नो राइट टू इंक्रीज द रेट ऑफ द क्रॉप, फसल की कीमत बढ़ाने का आपको अधिकार नहीं है। इट वॉज फिक्स बाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश ऑफिसर्स आल्सो। दैट इज द discriminatory, I mean to say that it is the exploitation, direct exploitation by the British East India Company. It's so. Dear students, next topic, crops for Europe. In this topic, we will discuss about that which crop that was demanded by the British East India Company. We will discuss in this topic. The British also realized that the countryside could not only yield revenue, it could also grow the crops the Europe required. By the late 18th century, the company was trying its best to expand the cultivation of opium and indigo. In the century and the half that followed, the British pursued it or forced cultivated in the various parts of India to produce other crops. Jute in Bengal, tea in Assam, sugarcane in United Province, now Uttar Pradesh, wheat in Punjab, cotton in Maharashtra and Punjab, rice in Madras. How was this done? Think, how was this done? The British used a variety of methods to expand the cultivation of crop that they need. Let us take a clear look at the story of one such crop on each method of production. I hope this is a very easy language. You can understand that the Britishers first they observe particular place which is fruitful, which is productive for the particular crops like jute, Bengal, wheat, Punjab, rice, Madras and Andhra Pradesh, tea, Assam, sugarcane, UP, indigo and Nil, Bengal and Odisha. And this type first they select particular land and they started exploitation.
यहीं से एक्सप्लॉयटेशन की नई रीत शुरू हो गई। आइए देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि हाउ वाज द डन, कैसे ये हुआ, कैसे किया गया। कहता है अंग्रेजों ने जब महसूस किया कि ग्रामीण इलाकों में न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं बल्कि यहाँ यूरोप की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो चीज़ें चाहिए, जो उपज चाहिए, जो फसल चाहिए वो पैदा की जा सकती है। इट मीन्स ब्रिटिशर्स ऑब्जर्व दैट लैंड कैन फुलफिल द नीड ऑफ यूरोप, स्पेशली ब्रिटेन। यूरोप के साथ साथ ब्रिटेन की आवश्यकताओं को पूरी यहाँ से की जा सकती थी। इसीलिए उन्होंने क्या किया, इसीलिए उन्होंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से सही फसल यहाँ पे पैदा करने के लिए फोर्स करने लगे। 18वीं सेंचुरी तक आते आते कंपनी ने ओपियम और इंडिगो की खेती पे फोकस किया क्योंकि इसकी रेट काफ़ी हाई थी यूरोपियन मार्केट में। उसके बाद लगभग 150 ईयर्स तक अंग्रेज देश के डिफरेंट पार्ट में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। इट मीन्स अगेन आई टेल यू दैट द पीजेंट्स, द कल्टिवेटर्स, द फार्मर्स, they were forced by Britishers to fulfill their demands। अपने आवश्यकता के अनुसार उनकी चीज़ों को खेती कराना शुरू किया और यहाँ से ये व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण थी। लेकिन यह कैसे किया गया? अंग्रेज़ों ने अपनी ज़रूरतों की फसल की खेती को फैलाने के लिए क्या किया? लोगों ने कई तरीके अपनाए। इस पे बात करना जरूरी है। लेट अस डिस्कस अबाउट दैट पॉइंट्स। एक फसल पे बात करते हैं, कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे वो एक्सप्लॉयटेशन करने लगे, कैसे किसान, कैसे वो एक्सप्लॉयटेटिव बने, एक्सप्लॉयटेटर बने और किस तरीके से उनका क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी दोनों किसानों को। ये तीन चीज़ों पे अगर हम किसी एक फसल को फोकस करके देखें तो हमें समझ में आ जाएगा। हाउ वाज दिस डन? द ब्रिटिश यूज्ड a variety of methods to expand the cultivation of crop that they need. Let us take a closer look at the story of one such crop, one such method of production. Dear student, अभी हमने पढ़ा कि किस तरीके से अंग्रेजों ने रेवेन्यू फिक्स करने के लिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, बम्बई, कुर्ग, यूनाइटेड प्रोविंस, मध्य प्रांत में अपने नए लैंड सेटलमेंट्स सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। हमने ये भी देखा कि सेटलमेंट्स का किसानों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। हमने उन बातों पे भी बात की जिसमें कहा जा सकता है कि होपफुल सेटलमेंट्स इम्प्लीमेंट करने के लिए ब्रिटिशर्स ने थोड़ा सोचा, लाइक महलवारी, लाइक रैयतवारी, बट देयर रिजल्ट वाज नॉट इन फेवर ऑफ द पीजेंट्स एंड नो डाउट टू से दैट ब्रिटिशर्स वर जस्ट लाइक एक शोषक के रूप में थे, शोषण करता थे, एक्सप्लॉयटेटर्स के रूप में काम कर रहे थे। जितना अधिक निकाल सके इंडियन पीजेंट से वो कर रहे थे भारत से। इन सारी चीज़ों पे हमने बात की। वी हैव डिस्कस ऑल दीज पॉइंट्स। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द क्रॉप्स फॉर यूरोप। वी विल स्टार्ट दैट पॉइंट्स अगेन एंड वी विल डिस्कस दैट सिचुएशन, कंडीशन ऑफ द पीजेंट्स। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। गुड बाय एंड टेक केयर। आई होप कि आपको ये वीडियो ठीक लगा होगा। ट्राई करिए, लर्न करिए, मेहनत करिए और खूब पढ़िए। टेक केयर एंड
गुड बाय।